बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, हमारा सेगमेंट है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आपको लिए चलते हैं तुफ़ैल बीमार साहब की तरफ। वो जब किसी से मिलने जाते हैं, उसकी जिस बीमारी का सुनते हैं अमूमन उसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और उसके बाद सब कुछ करते हैं, हर तरह की दवा दारू करने की कोशिश करते हैं, नहीं करते तो हाज़िक मुस्तनद डॉक्टर या तबीब से मशवरा नहीं करते। देखते हैं तुफ़ैल बीमार साहब आज किस बीमारी में मुब्तला हुए। हाय पता नहीं क्या लगा। हाँ बहुत ओ चाचा हो पाटन लगे। हाँ ना पाट चला उतना कौन लगा। आज क्या हो गया इन्हें? हाय शादी देख नहीं रहे, पेट च गंढ बज गई मेरे भतीजे दे। हाय किन्नी बारी किया सी लसूड़े ना खाया कर, खा खा के आंदरा कट्ठियां कर लिया ने ते ढिड दे चुबुरजी जी बना के बह गया। ओए लसूड़े दी गिटक वांगू ते तू चिमड़ी है मैनू। बीमार खानदान च मैं लेके आंदी ए नो अपनी बेड़ा तरजे वेख मेरे पुੱਤ ਦੇ पेट ਤੇ ਗੁੰਮਾ ਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਲੱਗਦਾ ਬੌਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਡਾ ਕਾਨੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਗਿੱਲਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਆ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਫੈਲ? ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਕਰ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਸੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪਈ। 16 ਵਰੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। 3 ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਲਿਆਈਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਫੈਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿਰੀ ਕੱਲੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਸਿਰੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰੀ ਦੇ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਚਾਚਾ ਕੋ ਗੰਢ ਦਾ ਸੋਚ। अच्छा ये हुआ क्या है आपको? ਸੀਮੈਂਟ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਨੇ ਥੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਸਣ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਲੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਆ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। दीदी ये तो अजीब सी बीमारी लग रही है, कहीं ऑपरेट वगैरह ना करना पड़े, आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। आपे ठीक हो जाएगा। इनू मर जाने नू किन्ना समझाया सी कि बोर्ड ते चढ़ के गोला ना खाया कर। ਓਏ ਚੜ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਪਿਆ। ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ। ਓਏ ਸਲਾਬ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਤੋੜੇਗਾ? मुझे तो लगता है हर्निया हो गया, ऑपरेट करना पड़ेगा। ਇੱਥੇ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰਨੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਨੀ ਦਾ? 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਓਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਸਲ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਨਸੀਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋ ਏ, ਫੰਡਰ ਤਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। तुफैल मेरे बचपन के साथी तुफैल। ਓਏ ਐਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੰਟ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਇੱਥੇ लो आ गई जे। तुफैल मेरे बचपन के साथी तुफैल। तुफैल ये तुम्हें क्या हो गया है? बीबी आप मुझे इस खानवादे में कुछ पढ़ी लिखी लगती हैं, ये मुझे लगता है हर्निया हो गया है। आप इनको लेके जाएं किसी डॉक्टर को, किसी सर्जन को दिखाएं, इन्हें ऑपरेट करवाना पड़ेगा। लो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। Oh God, आप तो चाहती ही नहीं है कि मेरा तुफैल ठीक हो ਜਿਸ जाए। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੁਫੈਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ। अल्लाह ना करे। तुफैल मेरे बचपन के साथी तुफैल, देखो मैं इतने दूर से तुम्हारे लिए ये तावीज दम करवा कर लेकर आई हूँ। ये दम वाला पानी पियोगे तो तुम्हारा ये जो कुछ भी बना हुआ है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ਦਮ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਗੰਡਾ ਖੋਲ ਜਾਣ। ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਮ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾ ਦੂਰ ਸੇ ਰਹੀ, लेकर ਮੈਂ आई ਤੇਰੀ हूँ। ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਘਰ ਚਲੀ। ਇੱਧਰ ਫੜਾ, ਇੱਧਰ ਫੜਾ, तुफैल ਇੱਧਰ नहीं। ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਧਰ।
ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। दर्द रुकता नहीं एक पल भी दर्द रुकता है। यही गल है। की काका दुमाना खादा नहीं तू? ਨਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ ਏ। ਹਾਏ ਕਾਕਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੰਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਲਦਾ। ਹਾਏ ਕਾਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੈ ਹਲੇ। 70 साल लिखा है 110 साल का हो। ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਅਗਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਬਈ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਤੜਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਮਰਦ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪਵਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਐ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਜੂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਪਵਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਣੀ ਐ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਗੰਢ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਡਿਆਲੇ ਵਾਲੀ, 4 ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ 2 ਗੰਢਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੀਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾ ਜੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਕੀ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਲੰਘੀ ਐ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਬਗੈਰ ਠੁੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੁੱਡੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਐਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਾਕੀ? ਹਾਏ 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 ਸੁਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਏ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਦੇ ਦਾ? ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਓਹੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਖਾਮਦਾਰ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ। ਓਏ ਨਿੱਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੂਸ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਏ ਕੀ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ। ਹਾਏ ਲੋ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਨਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਲੈ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਤਾ। ਨੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਏ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਗਈ ਏ। ਸਨੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਓਏ ਸੱਚ ਦੱਸ ਓਏ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਏ। ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ? ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਚਾਚਾ परा हो जा यार किसी डॉक्टर को बुलाए। ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ये ਜਾਓ। कैसे शाह जी, मेरा ये खाना मेरे मेरी गल हड्डियों सुन का लो। या इस किस्म का कोई केस लग रहा है, डॉक्टर को दिखाएं मगर जो भी है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। यार आप कैसे कर सकते ਇਹ हैं? ਗੰਢ ਜੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਮਲ ਕੇ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। हाय मैं मर गया। ਇਸੇ ਗੰਢ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ यार ये मर जाएगा। ये क्या कर रहे ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ। ਨਾ। हैं? ये क्या कर रहे हैं? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੰਢ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀਮਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ये क्या कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें। ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਗੰਢ ਯੂ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, वक्त हुआ है मौसीकी का एक इंतहाई खूबसूरत गीत का, और आज जो गीत हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं वो लिया है हमने फिल्म जीनत से। 30 मई बरोज़ जुमा 1975 को एक फिल्म रिलीज होती है, जीनत। जीनत समाजी मौजू पर बनी हुई एक फिल्म थी। एस सुलेमान साहब ने इसे डायरेक्ट किया था, जो सैयद नूर साहब के उस्ताद हैं, और इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे मोहम्मद जावेद फाजिल साहब, जो बाद में खुद एक बहुत बड़े डायरेक्टर के तौर पर सामने आए। टेलीविजन के लिए भी उन्होंने बाद में बहुत काम किया। ओवरऑल ये फिल्म एक हिट फिल्म तस्वर होती है, मगर कराची में फिल्म जीनत ने गोल्डन जुबली की थी। तकरीबन 50 से ज्यादा हफ्ते तक ये कराची के सिनेमाओं में लगी रही थी। इस फिल्म के नुमाया सितारों में शामिल थे शबनम, नदीम, शाहिद साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, आगा तालिश साहब और
तमन्ना बेगम साहिबा। एम शम्सी साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। नाशाद साहब ने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था, जो वाजिद अली नाशाद साहब के वालिद थे। और मेरा भी एजाज़ है कि वाजिद साहब ने मेरी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो कंपोज़ की, जिनको बहुत मकबूलियत भी हासिल हुई। आगा हसन इम्तिसाल साहब फिल्म जीनत के राइटर थे और तस्लीम फाजली साहब ने इंतहाई खूबसूरत गीत लिखे थे। सारे गीत अच्छे थे, लेकिन आज जो प्रोग्राम में हम गीत शामिल कर रहे हैं, इस गीत का कोई जवाब नहीं था। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, और गा रहे हैं फराज भट्ट साहब। कहने फराज भट्ट साहब। ओरिजिनली इस गाने को गाया था मेहदी हसन खान साहब ने। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, नए सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। माम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए सेगमेंट में? शाजी, अब बारी है हमारे बहुत ही हम सबके फेवरेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट शेरियात की। सिद्धा कह, साडे रोड दी वारी है, तड़फड़ दी वारी है, कड़पड़ दी वारी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਐ ਅਸਦ ਉਮਰ ਵਾਂਗੂ ਕਦੀ ਖੈਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮਾਂ जी, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੀ, ਸਾਡੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਚਾਰਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ। ਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ को अपना ਸਿਰ ਦਬਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੂਠਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸਿਰ ਦਬਾਉਂਦੀ? ਰੁਖਸਾਨਾ ਜੀ ਗੋਡਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਸਾਲਣ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। जी माम। तो शाजी, हमारे सेगमेंट शेरियात में अम्मी को जाना। मैंने भी जाना है, मैंने बताना कि आपका बच्चा रो रहा था, मगर जब भी शेरियात शुरू होता है यहाँ से आहो बक्का शुरू हो जाती है। ये तो शेरियात के शुरू होने पर ऐसे रोना शुरू कर देते हैं जैसे कि नैब के बुलाने पे आजकल के सियासतदान। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तो पैसे सारे शादी पे लुटा दिए थे और मेरी भैन बेवा सी ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਦੇਖ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਨਲਾਇਕ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਆ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ। ਆਹੋ, ਵਾਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟਾਈਮੀ ਬੈਲ ਵਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨੈਬ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਤਾ। ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਬ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ। बिल्कुल सही कहा आपने खुराना साहब। शाजी, आज शेरियात में जो शेर हम डिस्कस करेंगे ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਾਉਨ ਐਡਾ ਬਾਜ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦਾ। तीन डब्बा खरीदने वाले, अगर तुम्हें तैरना ना आता तो तुम भी डूब के मर गए थे। ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ, ਉਹਨੇ ਫਰਾਉਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो शाजी, हमेशा की तरह आज भी शेरियात में हम एक ऐसा शेर डिस्कस करेंगे जिसका एक मिसरा तो बहुत मशहूर और मकबूल है, जी ज़रबुल मसल की सूरत इख्तियार कर चुका है। ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। लेकिन शाजी, कई शेरों की तरह इस शेर के भी दूसरे मिसरे से कम लोग ही वाकिफ हैं और इसके शायर से भी कम लोग ही आशना हैं, और जिस शायर का लोग ये शेर समझते हैं उनका ये शेर नहीं है। जी हाँ, उर्दू दुनिया के जो बड़े मुगालते हैं, जी। ये जो मामला है, ये भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि जिस शायर का ये शेर समझा जाता है, ये उनका शेर नहीं है। सच में वसी। जी जी जी, बहुत मशहूर शेर है। और दूसरा मिसरा तो मुमकिन ही नहीं है कि जब मैं शेर पढ़ूंगा तो पहले मिसरे के बाद दूसरा मिसरा जो है वो यहाँ बैठे लोग ना उससे आशना हो। भाई मुझे भी एक शेर है, उसके शायर का नहीं पता चल रहा, आप जरा मेहरबानी फरमा दे। आप तो मरे हुए शायरों को भी जानते हैं। अच्छा बताइए। वो शेर है, ठंड लगदी वे मैनू ठंड लगदी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। चवंडा साहब, मुझे शायर का पता करवाने दे कि ठंड लगदी वे मैनू ठंड लगदी, 10 वे इलाज कोई इस ठंड का क्या होता है? अच्छा जी, मजा आता अगर गुजरी। हमारी इतनी बेतौकीरी कि आपने हमारी बात का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। मुझे बताएं। देख रहे हैं आप चपताल साहब? मेरी बात सुने, मुझे आप खुद बताएं। अब मैं ये जो आप कह रहे थे, बोले बोले लवशाई करे वही कि ठंड लगती मैनू ठंड लगती, वही ये जो आप कह रहे हैं। आप क्यों नहीं कह रहे? आपको जिंदगी में कभी ठंड नहीं लगी? नहीं मतलब
ये क्या, यानी कि इसमें क्या? आपने पहाड़ी मकामात पे जाके भी ठंड को महसूस नहीं किया? अच्छा ठीक है, कब ठंड पड़ेगी आपको? जब ये सारे मर जाएंगे कब ठंड पड़ेगी आपको? ਉਹ ਕੱਲੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ। मेरी बात सुने, बात ये है कि ये जो भी है ये यार, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ठंड लग दी, ये मुझे नहीं पता है किससे। क्या ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ खूबसूरत ਬਲਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। हम आते हैं यार अपने मौजू की तरफ आते हैं, शेर की तरफ आते हैं। जी मजा आता हाँ। अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, मजा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ यार अब अगर किसी ने ये दोहराया ना ये मिसरा, ਤੇ ਚਨਗੋਜ਼ੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। सुने हम मौजू की तरफ आते हैं। मजा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, मजा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, कहीं से हम बयां करते, कहीं से हम बयां करते, कहीं से तुम बयां करते। जी तो बताइए इस शेर के खालिक का नाम, और आज है 1 लाख रुपए। लो जी ये कन्फर्म है कि शायर नहीं जी लभना। पक्की बात है, नहीं मिलेगा। 1 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 20,000 ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਘਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ बेगम अच्छी सी माश की दाल बना के रखो, मैं जरा अपनी टीम को कल पा के यूं आए। और कभी आप लोगों ने सोचा, गौर किया, तफक्कुर किया कि ये दाल माश क्यों खाते हैं? सस्ती हुंदी? नहीं, दाल माश खाने से जरिया मुआश अच्छा हो जाता है, बंदे की फिक्र मुआश खत्म हो जाती है। एक सेकंड, मतलब दाल माश का फिक्रे मुआश से या जरिए मुआश से क्या ताल्लुक है? बादशाह किला आपने देखा है? जी कई बार देखा है। कई बार देखा है? हाँ। टिकट लेके या मुफ्त? मतलब मैं कभी ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। अब मतलब बगैर टिकट के भी कई बार चला गया, मतलब मोहब्बत से लोग ले गए, लेकिन टिकट लेके भी देखा। मोहब्बत से लोग आपको किले में लेके जाते हैं। वो बादशाह जो दाल माश खाया करते थे, उनमें से एक ने ये किला तामीर किया था। इतनी ताकत है दाल माश में। कहाँ जोड़ दी है आपने। बहरहाल शाहजी, अगर मैं वाकई इस शायर का नाम बूझ लूं तो क्या ये लाख रुपए आप मुझे दे देंगे? अच्छा, आज को बला का कॉन्फिडेंस लग रहा है हम में, है ना? Yes. लेकिन आपने ये क्यों सोचा? इसलिए कि जब मैं कह रहा हूँ आप किसी दिन भी आप लोग बूझ के दिखा लें, मैं जो मैं कहता हूँ इनाम की रकम वो 100% दे दूंगा, बूझे तो सही। शाहजी, आज तो ये लाख रुपया पक्का मेरा है। नाम बताएं, ले ले। ये शेर एक नामालूम शायर का है। अच्छा, इनका जिक्र ना तो किसी दीवान में है, अच्छा। ना ही किसी किताब में है, अच्छा। ना ही किसी तस्करे में है। अरे यस, तो आपका ये कहना है कि ये नामालूम शायर का शेर है। जी बिल्कुल। हाँ, नामालूम, मगर मैं इस नामालूम को भी जानता हूँ। अच्छा जी, तो बताइए आप। FIR में लिखा होता है, चंद नामालूम शायर मुशायरा करके निकल गए। और उन्हीं में से एक नामालूम शायर का ये शेर है, कहीं से तुम बयान करते, कहीं से हम बयान करते। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। अच्छा, लाख रुपए देता हूँ आपको। लाख रुपए नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो फिर इनके साथ भी और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या ये वाकई किसी नामालूम शायर का शेर है और उसके शायर का कुछ पता नहीं लगता है, और क्या वहाँ भी आज लाख रुपए जीतने में कामयाब हो जाएंगी। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि इस शेर का असल खालिक कौन है भी या बकौल इन लोगों के नामालूम। मज़ा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, मजा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, कहीं से हम बयां करते, कहीं से तुम बयां करते। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। शाहजी, हमारा सेगमेंट चल रहा था शेरियात, बल्कि बर्बादियात, और हम वो शेर डिस्कस कर रहे थे। मजा आता सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ मजा आता अगर तुम शायर का ना पूछते हमसे। मजा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, मजा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना, कहीं से हम बयां करते, कहीं से तुम बयां करते। तो शाहजी, आपने इस शेर के शायर को ढूंढने का कहा था और 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। जी बिल्कुल, जिसे मैंने जीत लिया है, ये बताकर कि इस शेर के शायर कोई नहीं है। अच्छा, आपने कैसे गेस किया कि ये जो है ये किसी नामालूम शायर का शेर है?
ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਟ ਖਿੱਚ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 7,500 डॉक्टर को दे दिया। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਹੇ ਸਨ, मैंने इतने पैसे डॉक्टर को क्यों दे दिए, मैं किहड़ा किसी ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੜਨੀ ਹੁੰਦੀ। शाह जी वैसे काफी हद तक दुरुस्त बात है और मैंने ये रकम देख के अंदाजा लगाया। अच्छा, मुझे आप लोगों के ना ख्यालात आलिया जानकर बड़ी वैसे हैरत हुई कि आपने कैसे और किस मोमेंट पे ये तस्वुर कर लिया अपने तौर पे कि मैं कंजूस आदमी हूँ। आपको याद होगा कि मेरे साथ मेरी फरमाइश पर आप मेरे साथ एक दिन भूल बन जा रहे थे और आपने कहा था कि मेरा किराया भी आप देंगे। नहीं मेरे भाई, हम अपनी गाड़ी पे जा रहे थे। अच्छा, आप बात मुकम्मल कर लें, मैं सुन लूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी उम्र का आदमी तो मैंने गाड़ी में बिठाना बरसों से छोड़ दिया। बात को घुमाए फिराए मत। अच्छा, जब टोल प्लाजा आया उन्होंने कहा जी पैसे दें, आपने कहा कि मेरा नवा शेर सुन तो मैनू काट। इस किस्म का शेर सुनाया, वो शख्स सुन हो गया, हम निकल गए। अच्छा जी, तो माम इसलिए आपको लगा कि ये नामालूम आदमी का शेर है? नहीं शाह जी, आप अमूमन इतना इनाम तभी रखते हैं जब शेर के शायर का कुछ पता ना हो और वो एक नामालूम शायर हो। अच्छा जी, यार वैसे बड़ी मतलब आपके जो ख्यालात हैं मेरे बारे में वो जान के मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये आज जो रकम है ये आप जान लीजिए कि ये किसी नामालूम शायर के शेर पर नहीं है। बहुत ही मालूम किस्म के शायर हैं और शेर भी को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, कोई 100-125 साल पुराना शेर होगा। चले मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ कि जिसका ये ओरिजिनली शेर है जिन शायर का, 18 नवंबर 1881 1881 में उनकी पैदाइश हुई और कलकत्ता भी जिसे कहते हैं, कलकत्ता इंडिया में उनकी पैदाइश हुई और फिर वो पाकिस्तान आ गए तकसीम के बाद और उस हिस्से में रहते थे जो अब बांग्लादेश कहलाता है। और फिर चिटागोंग में 20 जुलाई 1956 को उनकी डेथ हुई। तो आपका ये जो मफरूज़ा है ये गलत साबित हुआ कि जब नामालूम शायर हो तो इनाम ज़्यादा होता है। मालूम शायर है, करीब का शायर है और इनाम ज़्यादा है। तो बताइए इस शेर के खालिक का नाम। मज़ा आता अगर गुजरी हुई बातों का अफसाना कहीं से हम बयां करते, कहीं से तुम बयां करते। जी नाम बताइए और 1 लाख रुपए का इनाम पाइए। शाह जी भरोसा तो नहीं है लेकिन गूगल कर सकती हूँ। थोड़ा जा परा करके गूगल करिए। मरे उन्हें गूगल करनी के गरारे करने ने। अच्छा करें आप। शाह जी कोई क्लू ही दे दीजिए इन शायर का। अच्छा, क्लू के तौर पे मैं आपको इस शायर का एक शेर और सुनाता हूँ। अच्छा, इन्होंने कोई गैर मामूली शोहरत नहीं पाई लेकिन बड़े अच्छे शायर जो हैं वो इनके यहाँ मिलते हैं। अहले वफा खाक बने काम तुम्हारा, वाह वाह। अहले वफा खाक बने काम तुम्हारा, आगाज बता देता है अंजाम तुम्हारा। बताइए जी शायर का नाम। यस, ये चिराग हसन हसरत साहब का शेर है। इन्होंने अगों कह देना इस चिराग च कदी तेल ही नहीं पिया, ਇਹਦਾ शेर किवें हो सकता। अच्छा देखिए, यही मुगालता जो है वो अमूमन उसका लोग शिकार हो जाते हैं और उसकी एक वजह जो है चूँकि दोनों जो शायर हैं ओरिजिनली जिन शायर का शेर है और चिराग हसन हसरत साहब, अच्छा बड़ा कमाल का फ़िकाया कॉलम लिखते थे हसरत साहब और जर्नलिस्ट के तौर पे ज़्यादा उन्होंने काम किया मगर शेर भी बहुत कमाल का कहते थे। और उनकी जो मारूफ गज़ल है ਉਹਦਾ भी कोई शेर सुना दो, लगते हाथों ही रह गई। अच्छा, उसका भी जो मिसरे की कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो बहुत सेम है। अब चिराग साहब जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत अच्छा कॉलम लिखते थे, शायर के तौर पर भी जाने जाते थे, इसलिए जब ये शेर सामने आया तो आम तौर पे बहुत सारे लोग ये समझने लगे कि कहीं से हम बयां करते, कहीं से तुम बयां करते। ये भी हसरत साहब का शेर है। हसरत साहब का मारूफ शेर है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कंस्ट्रक्शन स्टाइल एक जैसा है। गैरों से कहा तुम, मिसरों की जो कंस्ट्रक्शन है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। जी, तो इसलिए भी बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं अहद भी एक ही था, ये चुके रह गए बांग्लादेश में। चिराग साहब यहाँ बहुत पॉपुलर थे तो ये शेर भी चिराग साहब के नाम लग गया। उन शायर की डेथ हुई बांग्लादेश में जो अब
बांग्लादेश है, उस वक्त तो पाकिस्तान था। बांग्लादेश में 1956 में चिराग हसन हसरत साहब की डेथ हुई 1955 में। तो एक ही अहद के ਦੋਵੇਂ ਚਿਰਾਗ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਝ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ यार, वैसे चिराग हसन हसरत साहब अगर आज हयात होते ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿੰਨ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। तो उन्होंने लुत्फ लेना था, क्योंकि बड़ा काटदार और बड़ा अच्छा जुमला लिखते थे। मज़ाहिया कॉलम होता था, फिकाइया तहरीर होती थी, सिंदबाद जहाजी के नाम से वो कॉलम लिखा करते थे चिराग हसन हसरत साहब। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ? ਹਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। अच्छा भाई गूगल तेरे बेड़े ही घर कौन चले बताएं आप, मतलब गेस तो करें ना। ਤੇ ਗੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ? ਹੁਣ ਤੇ ਗੂਗਲ 'ਚ ਵੀ ਧੁੱਦਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। शाह जी ये शेर है दाग देलवी साहब का। मैं इकबाल ने इस्लाह के लिए गजल भेजी थी दाग साहब को। मैं आपको बता रहा हूँ 1956 में उनकी डेथ हुई है, आप दाग की बात कर रही हैं। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਟ। शाह जी फिर ये होगा मोमिन खान मोमिन साहब का। मोमिन गालिब के हम असर, मैंने आपको बताया 1956 में डेथ हुई है, जो पाकिस्तान था जब बांग्लादेश नहीं बना था। ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? नहीं, मोमिन का भी नहीं। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? कैफी आजमी। नहीं, कैफी आजमी का भी ये शेर नहीं है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का शेर है ये। नहीं, ये मजरू साहब का भी शेर नहीं। लैला सुल्तानपुरी। नहीं, इस नाम की कोई शायरा नहीं पाई जाती। फिर तो ये खातिर गजनवी साहब का शेर नहीं, है। खातिर साहब का भी ये शेर नहीं है। फिर ये महमूद गजनवी साहब का होगा। नहीं, उनका भी शेर नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये शेर है वहशत रजा अली कलकत्तवी साहब का। ਹਾਏ ਕੈਸਾ ਜੰਗੀ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। जिन्हां दा नाम ही वहशत है, उन्हां दी वजह तो राहत किथे मिलनी सी सानू। वहशत रजा अली कलकत्तवी, कलकत्ते के चुके थे इसलिए कलकत्तवी कहलाते थे। वहशत रजा अली कलकत्तवी। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਹਿਸ਼ਤ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। गज़ल, कतात, रुबाइयात, मुसद्दस, मुखम्मस, कई तरह की नज़में भी इन्होंने कही। और जाने से पहले वहशत रजा अली कलकत्तवी साहब का एक और खूबसूरत शेर। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੇਬਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਆਮਦ नहीं ਜਾਂਦੀ। इशरत कहते हैं खुशी को, निशात को, और इशरत की तमन्ना क्या करें। और इशरत की यानी कि खुशी की, और इशरत की तमन्ना क्या करें। सामने तू हो तुझे देखा करें। वाह वाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।